Dear student, welcome to all of you. Today we shall study lesson second. We are not afraid to die if we can all be together. Try to understand the explanation of the paragraph on our second data and weighted. Yesterday we have studied first and second paragraph. Now today we shall study next paragraph. Pay attention into textbook. On our second day out of Cape Town, we began to encounter strong gales. For the next few weeks, they blew continuously. Gales didn't worry me, but the size of the waves was alarming, up to 15 meters as high as our main mast. December 25 found us 3,500 kilometers east of Cape Town. Despite adverse weather, we had a wonderful holiday, complete with a Christmas tree. New Year's Day saw no improvement in the weather, but we reasoned that it had to change soon, and it did change for the worse. Try to understand, dear student, the explanation of this paragraph. On our second day out of Cape Town, on second day whenever the author went out of the Cape Town, we began to encounter strong gales at that time. The author and his friends faced the strong wind. राइटर कहता है कि अगले दिन जब हम केप टाउन को छोड़े, केप टाउन से बाहर आए, तो आगे जाने पर हम लोगों को कह रहे हैं कि तेज हवा के झोंके का सामना करना पड़ा. फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स दे ब्लू कंटिन्यूअसली. द विंड, द स्ट्रॉन्ग विंड वाज ब्लोइंग नेक्स्ट वीक. और लगभग ये हवाएं, जो तेज हवाएं चल रही थी, वो हफ्तों तक चलती रही. Gales did not worry me, but the size of the waves was alarming. The strong wind didn't worry to the author, but he was afraid to the sea waves. It was alarming, warning to the author, up to 15 meters as high as our main mast. राइटर कह रहा, हवा जो तेज चल रही थी उससे मैं बहुत चिंतित नहीं था. वो हवाएं मुझे चिंतित नहीं कर रही थी, बल्कि जो लहरें उठ रही थी समुद्र की, और 15 मीटर्स, वो भी राइटर कह रहा है कि जो मेरे पाल थी, नौका में जो पाल लगा रहा था, जिसको मस्तूल कहते हैं, उससे भी 15 मीटर की ऊंचाई पर वो लहरें उठ रही थी. उन लहरों को देख करके राइटर कहता, मुझे बड़ा भय लगा. दिसंबर 25 फाउंड एज 3,005 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन. December 25, the author and his friends reached 3,500 kilometers east of Cape Town. और कह रहा 25 दिसंबर के बाद राइटर और उसके मित्र कहाँ पहुँच गए? कह रहे हैं 3,500 किलोमीटर पूर्व में केप टाउन. Despite glorious weather, we had a wonderful holiday, complete with a Christian tree. The author
passed wonderful holiday Christmas Day as a 25 December with a Christian tree। और कह रहा 25 दिसंबर जो उनके यहाँ प्रभु ईसा मसीह का जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, उस त्यौहार को उन्होंने क्रिसमस डे को अर्थात 25 दिसंबर को क्रिसमस ट्री के साथ उन्होंने व्यतीत किया, मनाया। न्यू ईयर्स डे सा नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर बट 1 जनवरी 1 देयर वॉज नो इम्प्रूवमेंट टू द वेदर। 1 जनवरी तक जाते जाते भी मौसम में कोई सुधार नहीं हुआ। बट वी रीजन दैट इट हैड टू चेंज सून बट द ऑथर होप दैट इट विल बी चेंज सून। जबकि राइटर ने ये आशा किया था कि हो सकता मौसम शीघ्र ही बदल जाए, एंड इट डिड चेंज फॉर द वर्स। और कौन कहे इस मौसम को चेंज हो, इम्प्रूवमेंट, इसमें सुधार हो, अच्छा हो, उससे भी बदतर मौसम की स्थिति हो गई थी। एट dawn on January 2 the waves were gigantic. We were sailing with only a small storm jib and were still making 8 knots. As the ship rose to the top of each waves, we could see endless enormous sea rolling towards us, and the screaming of the wind and the spray was painful to the ears. To slow the boat down, we dropped the storm jib and lashed a heavy mooring rope in a loop across the stern. Then we double-lashed everything, went through our life raft drill, attached like lions, donned oil skin and life jackets and waited. Try to understand the explanation of next paragraph. At dawn on January 2, early in the morning of January 2, the waves were gigantic. The waves of the sea became very high, very big. और राइटर कह रहा लगभग 2 जनवरी के बाद तो समुद्र की जो लहरें उठ रही थी और विशाल हो गई। और यहाँ तक कि we were sailing with only a small storm jib and were still making 8 knots। और अब हम तूफान का सामना करने के लिए हम लोगों ने छोटे पाल के साथ जो यात्रा, छोटी सी नौका के साथ यात्रा कर रहे थे, उसकी गति को 8 गुना बढ़ा दिए। As the ship rose to the top of each wave, we could see endless enormous seas rolling towards us। और जैसे जैसे जब लहरें उठती थी तो वास्तव में लहरों को देखकर राइटर कहता मुझे विशाल अनंत का अनुभव होता था। और इतना ही नहीं, and the screaming of the wind and spray was painful to the ears, and it was unable to hear the voice of wind and the spray। और हवा की जो साए साए की आवाज़ थी और जो बौछारों की आवाज़ थी लहरों की, वो सब कान को असहनीय हो गया था। सुनने में राइटर जो है समर्थ था। To slow the boat down, we dropped the storm jib and lashed a heavy mooring rope in a loop across the stern। और आगे कहता है कि to slow the movement of the boat, the author lashed and hold the boat tightly। और राइटर कहता है नाव की गति कम करने के लिए और तूफान में आने वाले जो पाल था उसको हमने गिरा दिया और नाव के डुब्बाल के आर पार भारी रस्सी का फंदा लगा दिया कि जिससे मजबूती से नाव आगे बढ़ती रहे। देन वी डबल लैस्ड एवरीथिंग वेंट थ्रू आवर लाइफ रैफ्ट ड्रिल। और इतना ही नहीं, फिर हमने हर चीज को दोबारा बांध दिया। जब वो बनी थी फिर भी उसको 2-2 बार बांध दिया, मजबूत कर दिया, जिससे जीवन रक्षक नौका को हम अपने काम में ला सकें और उसी से आगे की हम अपनी
तैयारी कर सके। डोंट ऑयल स्किन्स एंड लाइफ जैकेट्स एंड वेटेड अटैच टू द लाइफ लाइन्स। और उसके साथ हमने जीवन रक्षक जो रस्सियाँ थी उसको मजबूती से बांध लिया। जल रोधी जो कपड़े थे उसको हम लोगों ने धारण कर लिया। और इतना ही नहीं, जो जीवन रक्षक बुलेट प्रूफ जैकेट था उसको भी हम लोगों ने पहन करके अब आगे बढ़ने की प्रतीक्षा करने लगे। डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल दिस पैराग्राफ। तो ये पैराग्राफ आपका समाप्त हो गया। इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा। डिफिकल्ट वर्ड्स एंड इट्स मीनिंग इसको नोट कर लीजिए। तो इस प्रकार ये आज का जो पैराग्राफ है, जो एक्सप्लेनेशन था जो पैराग्राफ का, वो समाप्त हो गया। दैट्स ऑल, थैंक यू।